A company need capital to finance its operations and growth of the business. That finance is available from different sources. So the combination of the sources from which the company can get the finance and uses that finance, that combination is known as the capital structure. Capital structure is the combination of the debt and equity to finance the overall growth of the business and to finance the other operation of the business. In simple words, we can say that the capital structure is equal to the long-term finance needed by the company for its growth and overall operations. The long-term finance can be arranged through the combination of some securities. So the long-term finance includes finance available from the preference share, equity shares, debentures, other bonds, or accumulated reserves, or the bank loans. Different types of sources and different types of securities has its merits and demerits. So the capital structure includes that combination of securities which are most profitable and will help the company in the long run. The capital structure of a company may have more amount of equity share and less amount of debt capital, or it may have more amount of the debt capital and less amount of the equity shares. एक कंपनी को पूंजी की आवश्यकता उसके व्यवसाय में वृद्धि एवं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। इन धन की आवश्यकता और जो पूंजी की आवश्यकता होती है ये कई स्रोतों से पूरी की जा सकती है, कई स्रोत इसके उपलब्ध होते हैं। तो जो स्रोत एक कंपनी द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उन स्रोतों के संयोजन को पूंजी संरचना के नाम से जाना जाता है। कंपनी द्वारा कई प्रतिभूतियों को प्रयोग में लाया जाता है जिससे वो अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है। ये प्रतिभूतियाँ अलग अलग प्रकार की होते हैं और सबके अपने अपने लाभ हानि होते हैं। पूंजी संरचना के समय ये ध्यान में रखना होता है कि किस प्रतिभूति का क्या लाभ है और किस प्रतिभूति द्वारा अगर धन क्या उपलब्ध कराया जाता है तो उसकी क्या हानि है। किसी कंपनी की पूंजी संरचना में हो सकता है कि समता अंश पूंजी अधिक हो ऋण पूंजी की अपेक्षा, या ये भी हो सकता है कि ऋण पूंजी अधिक हो समता अंश पूंजी की अपेक्षा। हर कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार एक पूंजी संरचना तैयार करती है। Now let's see the factors that are determining the capital structure. So the first factor determining the capital structure is the nature of the business. Some business required huge amount of capital and some required small amount of capital. The concern which require high quantity of the fixed capital, their capital structure consists of the loan capital. Because a high quantity of capital cannot be generated only by the equity capital, it requires the loan capital also. So their capital also consists of the loan capital. Normally the manufacturing concern required more of the fixed capital. So, and that's why they require the loan capital also. Service industries are not in the need of the huge quantity of capital as compared to the manufacturing concerns. Second factor that is affecting the capital structure is affected by the desire to control the business. If the founders of the company wants to retain the control in their own hands, then they won't issue the equity shares. Because if they issue the equity shares, then the equity shareholder will get the voting right and the participation in the management. And therefore the control of the companies get spreaded. So if the company wants or desires to control the business, then they can raise the capital by issuing either preference share or by issuing either debentures. Third factor that is affecting the capital structure is the cost of financing. Cost of capital depend upon the prevailing rate of the interest, return which are expected by the investor if they have invested in the business, expenses that are involved in issuing of the shares, debentures or any securities, and other expenses. So the cost also play an important role in determining the capital structure. Every company tries to take that capital structure which will help in the long term growth of the business
along with the lowest cost. Normally, the cost of debenture is lower than the cost of the equity. The factor that are determining the capital structure requirement is the period of financing. If the funds are required for the permanent investment or for a longer period of time, then the equity shares are appropriate choice because their capital need not to be returned in a long time or in the lifetime of the company. Debenture or preference share can be preferred for the medium term finance. Other factor affecting the capital structure requirement is the flexibility. A good capital structure should always be flexible. So, there is more flexibility in case of the debenture and preference shares as compared to the equity shares. The reason is that debenture and preference shares can be paid off whenever the company want to pay it off or whenever company feels it's necessary. But equity share cannot be paid off during the lifetime of a company. So the amount of capital can be reduced if the company uses the debenture and preference share in its capital structure. तो अब हम देखते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटक। तो पहला घटक है हमारा व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना पे काफी प्रभाव डालती है। अगर व्यवसाय ऐसा है जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यवसाय की जो पूंजी संरचना होगी उसमें आपको जो है ऋण कैपिटल या जो बोल लेंगे हम लोन कैपिटल, वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ व्यवसाय जो होते हैं उसमें शामिल है हमारे निर्माणी उद्योग, क्योंकि निर्माणी उद्योग में ज्यादा मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होती है, वो भी फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है। और अगर आप दूसरे टाइप के इंडस्ट्रीज देखेंगे या जैसे कि आप सेवा उद्योग देखेंगे, सर्विस इंडस्ट्री देखेंगे, तो वहां पे पूंजी की जो है वहां पे ज्यादा अमाउंट या ज्यादा मात्रा में जो पूंजी है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला एक और घटक है और वो है व्यवसाय पे नियंत्रण की इच्छा होना। अगर कंपनी के फाउंडर्स चाहते हैं कि उनका नियंत्रण, कंपनी का जो व्यवसाय है उसका नियंत्रण पूरी तरह से उनके हाथों में हो, तो ऐसे केस में वो इक्विटी शेयर, दैट मीन्स जो समता अंश है, उसको जो है इशू करने से हिचकिचाएंगे, वो इशू नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि समता अंश अगर किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं तो उसके पास जो है वोटिंग राइट्स आ जाते हैं और साथ में प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार भी उसे मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो नियंत्रण होता है व्यवसाय पे, वो उसका फैलाव हो जाता है। और अगर जो फाउंडर होते हैं कंपनी के, वो उसको फैलाना नहीं चाहते और अपने हाथों में ही पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो वो समता अंशों की जगह पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन करना ज्यादा उचित समझेंगे। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाला एक और घटक वो है लागत। जब भी हम पूंजी की व्यवस्था करते हैं या जब भी कंपनी पूंजी की व्यवस्था करती है तो उसमें कुछ ना कुछ लागत शामिल होती है। जैसे कि ब्याज को चुकाने में कुछ लागत आती है। कई बार जो होते हैं इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, तो वो अपने पूंजी पर ब्याज की उम्मीद करते हैं, अच्छे ब्याज की उम्मीद करते हैं, अच्छे रिटर्न्स की जो है उनकी अपेक्षा होती है। निर्गमन जो सिक्योरिटीज है, प्रतिभूतियां हैं, उनका निर्गमन करने में भी कुछ खर्चे होते हैं। तो इस प्रकार के कई खर्चे और कई लागतें जो है पूंजी की व्यवस्था करने में आती है। तो हमारे लिए जो पूंजी संरचना, जो भी कोई भी कंपनी अगर पूंजी संरचना बनाती है तो वो कोशिश यही करती है कि ऐसी संरचना बनाई जाए जो कि कंपनी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे ही सही लंबे समय तक, साथ में जिसकी लागत जो है वो भी कम हो। एक और घटक जो कि पूंजी संरचना को प्रभावित करता है वो है समयावधि। वित्त की आवश्यकता कितने समय के लिए है, ये भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। अगर लंबे समय के लिए या स्थायी रूप से वित्त की आवश्यकता कंपनी में है तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि कंपनी समता अंशों का निर्गमन करके पूंजी का बंदोबस्त करे। और अगर मध्यम समय के लिए, मिड टर्म के लिए फाइनेंस की जरूरत है तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि कंपनी जो है ऋण पत्रों को या प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों को या बैंक के लोन्स को उसको यूज करे। तो जो समयावधि होती है
वो भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। डिबेंचर्स दैट मीन्स ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंशों को कुछ समय बाद जो है रिटर्न करना होता, उनका जो है अमाउंट रिटर्न करना होता है और उनको उनका ब्याज भी समय पे देना आवश्यक होता है। मगर अगर समता अंश द्वारा पूंजी एकत्रित की गई है तो कंपनी के लाइफ टाइम तक जो है उनको पूंजी रिटर्न करने की, कैपिटल रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है कंपनी को। इसलिए यहाँ पे समयावधि बहुत मायने रखती है पूंजी संरचना को निर्धारित करते समय। आखिरी घटक जो हम देख रहे हैं पूंजी संरचना को निर्धारित करने में वो है लोचशीलता। हर कंपनी का पूंजी संरचना तभी अच्छा कहलाएगा जब उसमें अच्छा खासा लोच हो। तो लोचशीलता अगर आप देखेंगे तो ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश और जो बाहरी ऋण लिए जाते हैं उनमें लोचशीलता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि कंपनी कभी भी उन्हें क्या कर सकती है, पे ऑफ कर सकती है, उनको चुका सकती है। जब भी कंपनी को लगता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है तो कंपनी कभी भी उस पूंजी को चुका देगी, जिससे कि पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन समता अंशों से जो पूंजी एकत्रित की गई है उसको जो है कंपनी के लाइफ टाइम तक चुकाया नहीं जाता है। तो या अगर कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है कंपनी तो ऐसे में डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर दैट मीन्स ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश अच्छे रहते हैं, बैंक लोन्स अच्छे रहते हैं समता पूंजी की अपेक्षा।